بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 15 سال کی تھی جب میرے باپ نے میرا اسکول چھڑوا دیا۔ ایک دن بھائی کو بلانے اس کے کمرے میں گئی تو بھائی نے میرے ساتھ زبردستی کی اور میری عزت خاک میں ملا دی۔ پھر میں ڈری سہمی رہتی تھی۔ ایک دن رات کو بھائی میرے کمرے میں آئے، میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے تو میں پاپا کے کمرے میں بھاگ گئی۔ جب پاپا کو بھائی کے بارے میں بتایا تو میرے جسم سے روح نکل گئی۔ اس رات میرے پاپا اور بھائی نے میرے ساتھ، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے اپنے ہی میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ میرے باپ اور بھائی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی اتنی بڑی سزا کاٹ رہی تھی کہ لگتا تھا ساری زندگی کبھی شیشے میں اپنا چہرہ نہ دیکھ سکوں گی۔ چند سال کی عمر میں ہی میں نے اتنا بڑا ظلم اپنی ذات پر برداشت کیا جو کسی 15 سالہ لڑکی کے لیے سوچنا بھی ممکن نہیں۔ میری عزت کے رکھوالوں نے ہی میری عزت کو لوٹ کر مجھے پامال کر دیا اور میں اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہ گئی۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا اور گھر میں میری اماں، پاپا اور ایک بھائی تھے۔ میں 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ زندگی بہت آسان نہ سہی لیکن بہت مشکل بھی نہیں تھی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ بدل گیا۔ میری روح چھلنی کرتی گئی۔ میرا بھائی اکثر ہی اپنے کمرے میں بند رہتا تھا اور اس کی حرکتیں مجھے کچھ مشکوک سی لگتی تھیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کچھ غلط سرگرمیوں میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ پاپا کا اتنا لاڈلا تھا کہ میں نے کبھی یہ بات کسی سے نہیں کہی اور اسی بات کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا۔ بھائی کسی کو بھی اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتا تھا اور مجھ پر خاص کر پابندی لگی ہوئی تھی۔ میں بھی اس کے کمرے میں نہیں جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ بھائی کمرے میں ایسا کیا کرتا ہے جو اسے میرا اپنے کمرے میں آنا پسند نہیں ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس راز پر سے پردہ اٹھ گیا۔ ایک شام اماں نے مجھے بھائی کو چائے دینے کے لیے کمرے میں بھیجا تو میرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، اس لیے میں نے دروازہ بجانے کے بجائے ایسے ہی پاؤں کے دھکے سے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ وقت بھائی کی پڑھائی کا وقت تھا۔ وہ پڑھائی کے نام پر زیادہ تر وقت کمرے میں ہی گزارتا تھا۔ جیسے ہی میرے بھائی کو میری موجودگی کا احساس ہوا، اس نے جلدی سے کتابیں بند کر دی اور مجھے ڈانٹنے لگا کہ میں کیوں بنا دروازہ کھٹکھٹائے اس کے کمرے میں آئی ہوں۔ وہ بہت غصے میں مجھے گالیاں دیے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اس کی جاسوسی کرتی ہوں۔ وہ اپنے غلط عمل پر شرمندہ نہیں تھا، بلکہ وہ بہت ڈھٹائی سے مجھے ہی برا بھلا کہہ رہا تھا۔ میں اسے ڈانٹ کھانے کے بعد خوفزدہ ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، کیونکہ گھر میں بھائی سب کا لاڈلا تھا جبکہ میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میرے باپ کے لیے میرا بھائی ہی سب کچھ تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ پاپا سے میری کوئی جھوٹی سچی شکایت نہ لگا دے اور پھر مجھے پاپا کی مار بھی نہ سہنی پڑے۔ بچپن سے ہی ایسا ہوتا آیا تھا کہ میری غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی مجھے ہی پاپا کے غصے کا شکار ہونا پڑتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ اپنے بھائی کو گندی تصویروں کو دیکھتے ہوئے پایا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ مجھے اپنے فون پر بھی ایسی نازیبا ویڈیو دیکھتا ہوا نظر آتا کہ مجھے اپنے آپ سے شرم محسوس ہوتی۔ پہلے وہ یہ سب کچھ مجھ سے چھپا کر کرتا تھا، لیکن اب تو کھلے عام ہی میرے سامنے دیکھا کرتا۔ اسے معلوم تھا کہ میں پاپا سے ڈرتی ہوں اور پاپا بھی مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس لیے اس بات کا وہ بھرپور فائدہ اٹھاتا تھا۔ میرے بھائی نے بہت ساری لڑکیوں سے دوستیاں بھی کر رکھی تھیں اور وہ ان سے ملاقات کے لیے بھی جاتا تھا، لیکن پاپا نے کبھی بھائی کی طرف توجہ ہی نہ دی تھی۔ وہ تو بس بھائی کے منہ سے نکلی ہر خواہش کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے۔ میرے بھائی کے دوست بھی اکثر ہمارے گھر آتے اور ان کی نگاہوں میں جو کچھ میرے لیے ہوتا، میرے سارے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی۔ بھائی کا دوست سنی تو اکثر ہی بہانے سے میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا۔ وہ سب دوست کمرے میں بند گھنٹوں پڑھائی کے نام پر فحش فلمیں دیکھا کرتے تھے اور میں اس بات سے بخوبی واقف تھی۔ بھائی کا رزلٹ کبھی اچھا نہیں آتا تھا، پھر بھی پاپا اسے سراہتے، جبکہ پاپا مجھ پر کبھی ایک محبت بھری نگاہ بھی نہیں ڈالتے تھے۔ میں اپنے ہی گھر میں ایسے رہتی تھی جیسے میں کوئی ملازمہ ہوں۔ اسکول سے آنے کے بعد سارا دن اماں کے ساتھ کام کاج میں مصروف رہتی۔ مجھے ڈھنگ سے پڑھائی کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ پاپا بھی دفتر سے گھر سے آتے ہی چھوٹے سے چھوٹا کام کے لیے مجھے آواز لگاتے، ہر بات پر غصہ کرتے اور ایسے جھٹکتے کہ میں اپنے ہی گھر میں خود کو اجنبی محسوس کرتی۔ پاپا کا رویہ ماں کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں تھا۔ وہ چھوٹی سی چھوٹی بات پر اماں پر بھی ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے۔ ذہنی طور پر پریشان رہنے کی وجہ سے میں ٹھیک سے پڑھائی نہ کر سکی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں امتحانات میں بری طرح ناکام ہو گئی اور پاپا نے مجھ پر بہت زیادہ غصہ کیا اور میری پڑھائی ختم کروا دی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اسی طرح اچانک سے پڑھائی ختم ہو جانے پر میں بہت زیادہ دکھی ہو گئی تھی۔ میری ماں بھی میری طرح ایک مجبور عورت تھی،
क्योंकि पापा के सामने उनकी भी एक नहीं चलती थी, जबकि मेरा भाई शोएब जो कहता वो फौरन पूरा हो जाता और पापा की आंखों का तारा था वो, और उसका हर गलत काम भी पापा को सही लगता था। एक दिन मैं घर की सफाई में मसरूफ थी कि जब अम्मा ने मुझे शोएब भाई के कमरे की सफाई के लिए कहा। मैं जानती थी कि शोएब भाई को मेरा उनके कमरे में जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अम्मा को मना कर दिया। लेकिन उसी वक्त पीछे से पापा आ गए और कहने लगे कि तू अपने भाई से इतना क्यों जलती है कि उसके कमरे की सफाई तक नहीं कर सकती। इससे पहले कि बात मजीद बढ़ती, मैंने फौरन ही झाड़ू उठाई और शोएब भाई के कमरे में चली गई। मेरी जिंदगी में सिवाय घर के काम काज के और कुछ नहीं बचा था। भाई के कमरे की सफाई करते हुए जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उनके तकियों के नीचे कुछ ऐसे रसाले रखे हुए थे जिनके हर सफ़े पर इंतहाई बेहुदा तस्वीर थी, और भी बहुत कुछ ऐसा था जो मैं बयान भी नहीं कर सकती थी। नीम बरहना लिबास पहने लड़कियां और लड़के एक साथ हर सफ़े पर नुमाया थे। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। मैंने भी किसी भी चीज को हाथ ना लगाया और जल्दी जल्दी सफाई करके बाहर चली आई। दिन यूं ही गुजर रहे थे। कभी कभी मुझे अपने स्कूल के दोस्त बहुत याद आते। मैं अपने स्कूल में एक लड़के को पसंद करती थी और उससे मेरी काफी दोस्ती थी। जब मैं काफी दिनों तक स्कूल नहीं गई तो एक शाम वो हमारे घर चला आया। अपने घर के दरवाजे पे उसे खड़ा देखकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे घर में सब लोगों का जहन किस तरह का है। मेरा दोस्त कहने लगा कि मारिया, मैं सिर्फ ये पूछने आया था कि तुम खैरियत से तो हो ना, जो इतने दिनों से स्कूल नहीं आ रही। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। इससे पहले कि मैं उसकी किसी बात का जवाब देती, शोएब पीछे से चला आया और आते ही उसने मेरे दोस्त को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। मार पीट करके उसने मेरे दोस्त को भगा दिया और मुझे हाथ से पकड़कर खींचता हुआ मेरे कमरे में ले आया। अम्मा सौदा लेने बाजार गई हुई थी और पापा अभी दफ्तर से नहीं आए थे। मेरे 18 साल के भाई ने मुझे मेरे ही कमरे में लाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। वो मुझे गालियां बकता जा रहा था और साथ साथ मेरी इज्जत को पामाल कर रहा था। उसका लहजा और लफ्ज इतने गंदे थे कि मैंने अपने कानों में उंगलियां डाल ली थी। वो कह रहा था कि मैंने अम्मा के गैर मौजूदगी में जानबूझकर अपने यार को बुलवाया है और मैं इन सब के पीछे इसी तरह अयाशी करती हूँ। वो कह रहा था कि मेरे वजूद की सारी गर्मी खुद ही बाहर निकाल देगा ताकि मैं यहाँ वहाँ मुंह ना मारूं। मैंने लाख उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त है जो मेरी खैरियत पूछने के लिए खुद ही आया था। मुझे तो ये भी इल्म नहीं था कि उसे मेरे घर का पता कैसे मिला। लेकिन मेरा भाई मेरी किसी बात पर एतबार करने को राजी नहीं था। वो खुद जिस रास्ते पर चल रहा था उसे लग रहा था कि मैं भी वही रास्ता इख्तियार कर बैठी हूँ। वो मुझे अपनी ज़हनियत के हिसाब से तौल रहा था। शोएब एक लंबे चौड़े कद काठ वाला लड़का था और मैं उसके सामने बिल्कुल धान पान सी लड़की थी। थोड़ी ही देर में उसने मुझे पूरी तरह रोंद कर रख दिया था। मैं अजियत की इंतहा पर थी, लेकिन शोएब को एक लम्हे के लिए भी मुझ पर रहम ना आया था। ऐसा सुलूक तो कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता जैसा शोएब मेरे साथ कर चुका था। मेरा पूरा जिस्म जख्मों से चूर हो चुका था और टीसें उठ रही थी। अम्मा के आने से पहले पहले वो मेरे साथ ज्यादती करके कमरे से जा चुका था और मैं डर के मारे अपने ही कमरे में सहम कर बैठ गई थी। शोएब ने मुझे धमकी दी थी कि अगर ये बात मैंने किसी को बताई तो वो मेरा बहुत बुरा हाल कर देगा। मैं इस कदर खौफजदा हो चुकी थी कि मैंने ये बात अपनी माँ को भी ना बताई। मैं जानती थी कि मेरी माँ एक बेबस औरत है और वो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। वो तो खुद आज तक पापा के जुल्म से नहीं बच सकी थी, लेकिन मुझे क्या खबर थी मेरी खामोशी मेरे लिए सजा बन जाएगी। यहीं से मेरी बर्बादी का पूरी तरह आगाज हो चुका था। शोएब को जब मौका मिलता वो मेरे कमरे में चला आता और मेरे साथ ज्यादती करता। मेरा दोस्त तो एक बहाना था। मेरे भाई को अपनी प्यास बुझाने का एक आसान रास्ता मिल गया। अम्मा के घर से निकलने की देर होती और वो मुझे अपनी हवस का निशाना बना लेता। वो न जाने कब से गलत रास्ते पर चल निकला था और गंदी गंदी तस्वीरें और वीडियो देखकर उसके अंदर जो बेचैनी पैदा होती थी वो उसे मिटाने के लिए मेरा पूरी तरह इस्तेमाल कर रहा था। मेरी जिंदगी पूरी तरह शोएब के रहमो करम पर हो गई थी। शोएब की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कभी कभी तो वो अम्मा की मौजूदगी में भी मेरे कमरे में आ धमकता और किसी न किसी तरह मुझे हरासा करता। मैं अपने अंदर एक जंग लड़ रही थी और बहुत घुटन का शिकार थी। अम्मा से कुछ कहते हुए भी मुझे डर लगता था और पापा से तो बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। पापा की नजरों में तो मैं हमेशा से ही एक बोझ थी। पापा तो मेरी पैदाइश पर भी खुश नहीं थे। एक दिन फिर ऐसा हुआ कि घर में कोई मौजूद नहीं था और दरवाजे पर दस्तक होने पर दरवाजा खोलने गई तो मेरा दोस्त मेरे सामने खड़ा था।
वो मुझसे कह रहा था कि तुम्हारा भाई तो बहुत ही खराब इंसान है, उसने हमारी दोस्ती को न जाने क्या समझ लिया। जब से मैं तुम्हारे भाई से पिट के यहाँ से गया हूँ, मुस्तकिल तुम्हारे ही बारे में सोचने लगा हूँ। मुझे ये सोच के परेशानी होती है कि उसने न जाने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया होगा। मैंने रोते हुए अपने दोस्त से कहा कि तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, मैं पहले ही बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरा भाई इंसान नहीं, एक दरिंदा है। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया और दोबारा मेरे साथ देख लिया तो वो मुझे मार डालेगा। मैंने जैसे तैसे अपने दोस्त को भगाकर दरवाजा बंद किया और कमरे में आकर रोने लगी। मेरा हाल ऐसा था कि मैं किसी से एक लफ्ज भी नहीं कह सकती थी और अब बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। अम्मा और पापा रात को अपने कमरे में बंद थे कि जब भाई अचानक ही मेरे कमरे में चला आया। मैं कमरे का दरवाजा लॉक करना भूल गई थी। वो आते ही मेरा दुपट्टा खींचकर मुझे जबरदस्ती बिस्तर पर लिटाने लगा तो मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैं उसे धक्का देती हुई भागकर कमरे से निकल गई। मैं मजीद अपने भाई के हाथों पामाल नहीं हो सकती थी। मैंने जाकर मामा पापा के कमरे का दरवाजा खटखटाया और चीखने लगी। जैसे ही पापा ने दरवाजा खोला तो मैं उनके सीने से चिपक गई और जोर जोर से रोने लगी। शोएब भी मेरे पीछे ही चला आया था। पापा ने मुझे अपने सीने से अलग किया और सख्ती से पूछने लगे कि आधी रात को तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, क्यों सारे घर को सर पर उठा रखा है? तुमने हमारी जिंदगी अजीरन कर दी है। मैंने रोते हुए उन्हें बताया कि शोएब भाई पिछले 1 महीने से मुझसे ज्यादती कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ के कदमों तले से जमीन निकल गई, लेकिन मेरे बाप ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे मैं झूठ कह रही हूँ। पापा कहने लगे कि मारिया, बेहतर यह है कि अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तुमने कोई फजूल ख्वाब देखा है और अब हमारी नींद हराम कर रही हो। अपने भाई पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें हमेशा ही शोएब से हसद रहता है। मुझे अपने बाप से ऐसे रवैये की उम्मीद हरगिज नहीं थी। मैंने बड़ी मुश्किल से पापा को यकीन दिलाने की कोशिश की तो पापा ने एक नजर शोएब पर डाली। शोएब बड़ी ढिठाई से कहने लगा कि आपकी बेटी बाहर मुंह मारने लगी थी। इसके जज्बात इतने बेकाबू हो रहे थे कि ये अम्मा की गैर मौजूदगी में अपने यारों को घर बुला रही थी। मैंने खुद इसे इसके यार के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। ये तो हमारी इज्जत को मलिया मेट करने पर तुल गई थी, इसलिए मैंने इसके जज्बात को ठंडा कर दिया, वरना इसने तो हमें रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शोएब न जाने और भी क्या क्या कह रहा था और मैं सकते में खड़ी उसे देख रही थी। मेरे पापा शोएब की हर बात पर आंखें बंद करके यकीन करते थे। शोएब जाकर मेरे कमरे से कुछ रिसाले उठा लाया था और पापा के सामने रखकर कहने लगा कि देखिए आपकी बेटी ये सब देखती है। मुझे तो इन रिसालों के बारे में कुछ खबर भी नहीं थी, लेकिन जब शोएब ने उसे खोलकर पापा के सामने रखा तो उसके अंदर जितनी नंगी और बेहुदा तस्वीर थी, मैं खुद सकते में आ गई थी। ये वही रिसाले थे जो मैंने उनके तकिए के नीचे देखे थे। शोएब ने न जाने कब उन रिसालों को मेरे कमरे में पहुंचा दिया था, मुझे खुद भी नहीं पता था। पापा के चेहरे पर आने वाले तासुरात ने मेरी रूह कब्ज कर ली थी। वो इंतहाई गजब के आलम में मुझे देख रहे थे। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि भाई झूठ बोल रहा है, लेकिन लफ्ज मेरे होठों पर ही दम तोड़ गए थे। उसके बाद मेरे बाप ने जो मेरे साथ किया, ऐसा लगा कि बस कयामत आ गई। मेरे बाप को मेरे भाई की हर बात पर यकीन आ चुका था। मेरे बाप ने मेरी माँ और भाई को कमरे से बाहर निकाला और मुझे अपने साथ कमरे में बंद कर लिया और उसके बाद मेरे साथ ऐसा वहशियाना सलूक किया जो शोएब ने भी नहीं किया था। मैं सारी रात अपने बाप की आगे बेबस और लाचार पड़ी रही थी और वो मेरे साथ हर हद पार करते चले गए। मेरी माँ सारी रात दरवाजा पीटती रही थी और जब सुबह मेरे बाप ने दरवाजा खोला तो मेरी माँ तड़प कर मेरे पास आई थी। मेरी हालत देखकर वो जीते जी मर गई थी। अपनी आंखों के सामने अपनी जवान बेटी का ऐसा हाल देखकर तो किसी भी माँ का कलेजा मुंह को आ सकता है। मेरा बाप मेरी माँ को भी किसी खातिर में ना लाया और खुद दफ्तर के लिए चला गया, लेकिन जुल्म यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि बाप के जाते ही शोएब दोबारा कमरे में आया और उसने माँ को जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाल दिया और उसके बाद वो अपनी हवस पूरी करने लगा। मेरी मजबूर माँ बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी। अम्मा ने शोएब को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन जवान बेटे के आगे वो कुछ भी नहीं थी। फिर ये रोज का सिलसिला ही बन गया। आधी आधी रात तक मेरा बाप मेरे साथ जुल्म करता और दिन में कई कई घंटे मेरा भाई मुझे ज्यादती का निशाना बनाता। एक दिन मेरी माँ ने मुझे मौका देकर फरार करवा दिया और मैं सीधे अपने दोस्त के घर गई। वो मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। मैंने उसे खुद अपनी हर बात बताई और मुझे लेकर वो छोटे से होटल चला गया और उसने मुझे कुछ दिन यहीं ठहरने को कहा। वो मुझे होटल छोड़कर खुद वापस घर चला गया था क्योंकि वो हालात का जायजा लेना चाहता था। मैं अकेली ही होटल के रूम में रुकी हुई थी कि जब आधी रात को दरवाजा बजा। मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्त मुझे मिलने के लिए आया है, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि सामने तो पुलिस वाले खड़े थे और पुलिस वालों के साथ मेरा बाप भी मौजूद था।
मेरे बाप ने न जाने किस तरह मुझे ढूंढ निकाला था और उन्होंने पुलिस वालों से भी गलत बयानी की थी कि मैं किसी लड़के के बहकावे में आकर घर बार छोड़कर भाग गई हूँ, जबकि मैं अभी कम उम्र हूँ। मेरे बाप ने एक दफा फिर मुझे लाकर घर बंद कर दिया और अब तो मुझ पर पहले से भी ज्यादा जुल्म होने लगा। मेरे बाप ने मेरी माँ को भी नहीं बख्शा था, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि मुझे भगाने में कहीं न कहीं अम्मा का भी हाथ था। मेरा बाप हर रोज मुझसे यही पूछता था कि मैं किस यार के सहारे घर छोड़कर भागी थी, लेकिन मैं खामोश रहती। वो कहते हैं ना कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। मेरे मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी माँ सौदा लेने के लिए बाजार गई तो उसे मेरा दोस्त मिल गया। मेरे दोस्त ने मेरी माँ से कहा कि अगर वो उसका साथ दें तो वो दोनों मुझे इस जुल्म से निजात दिलवा सकते हैं। मेरा दोस्त एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखता था और उसके वालिद भी एक नेक शख्स थे। मेरे दोस्त ने मेरी माँ को केस करने के लिए राजी कर लिया था। मेरी माँ भी अब इन हालात से थक चुकी थी, इसलिए उसने मेरे दोस्त के साथ मिलकर बाकायदा एक FIR दर्ज करवाई, जिसमें मेरे बाप और भाई का नाम शामिल था। उन दोनों पर मुझे हब्स बेजा में रखने और मेरे साथ जबरदस्ती जिनसी ताल्लुक बनाने का इल्जाम था। मेरी माँ ने बहुत हिम्मत करके ये कदम उठाया था। मेरी माँ की FIR पर पुलिस ने फौरन ही कार्रवाई करके मेरे बाप और भाई को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और मेरे मेडिकल टेस्ट भी हुए। सारा सच आईने की तरह साफ था। मेरे बाप और भाई को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। अंधेरी रात खत्म हो गई थी, अब एक नया सवेरा था। कभी कभी सगे रिश्ते भी अपनी हदूद भूलकर गुनाहों की दलदल में धंस जाते हैं। ऐसे में किसी न किसी को हिम्मत दिखानी पड़ती है। मेरी माँ ने भी ऐसी ही हिम्मत दिखाकर मुझे बचा लिया था। कहने और सुनने को ये बात बहुत अजीब है कि कोई भाई और बाप कैसे अपनी ही बहन बेटी को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आजकल की दुनिया में जहाँ फहश मवाद और मोबाइल फोन के जरिए जिनसी हिजान को इतना ज्यादा आम कर दिया गया है, वहाँ ऐसे वाकयात रूनुमा होना कोई बड़ी बात नहीं रही। हमारे बच्चे बहुत कम उम्र से ही मोबाइल फोन के जरिए पूरी दुनिया से राब्ता कायम कर चुके हैं। ऐसे में उनको सही और गलत की तमीज सिखाना बहुत जरूरी हो चुका है, वरना वो दिन दूर नहीं जब माशरे में ऐसे वाकयात आम हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।